ہم تو نہ تو نبی بن سکتے ہیں نہ معصوم بن سکتے ہیں، مگر یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ گبر زادہ آیا ہے، ذرا توجہ کیجئے، غیر مذہب کا آیا ہے سلمان، غیر مذہب کا بھی ہے، غیر ملک کا بھی ہے، غیر زبان کا بھی ہے، غیر علاقے کا بھی ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو ایسے ایویلویٹ کیا ہے کہ جب نبی نے کہا، کسی نے کہا کہ سلمان فارسی آ رہے ہیں، تو نبی نے کہا جب باغ میں تھے تو فارسی تھے، جب محمد کے پاس آ گئے تو محمدی ہو گئے، اب انہیں سلمان محمدی کہا کرو، اس لیے کہ سلمان منا اہل البیت۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم نے سلمان کے کریکٹر کو رول ماڈل کے طور پہ ماننا ہے۔ ہاں، ہمیں کوشش تو یہ کرنی ہے، اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ علامہ ہلی نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا کیا بنو گے؟ کہا ہلی بنوں گا۔ کہا پھر کچھ نہیں بن سکتے۔ کیسے؟ ہم نے تو سوچا تھا امام الصادق کے علم کی سرحد تک جائیں گے، تو ہلی بنے ہیں۔ اگر آپ ہلی کا سوچ رہے ہیں پھر آپ کچھ نہیں بن سکتے، تو ہمیں سوچنا اوپر چاہیے ہمیشہ۔ ہمارے امام کا حکم بھی ہے کہ دولت کی بابت ہمیشہ خود سے نیچے دیکھو، علم و عمل کی بابت ہمیشہ خود کو اوپر سے کمپیئر۔ یہ اشرا اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم نے عاشقان صاحب الزمان کی فوج تیار کی، ایک آرمی، اور آرمی کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، آرمی کا لباس ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک کنونشن میں مجھے کہا کہ ذرا آپ نماز پڑھا دیجئے۔ فجر کی نماز تھی، ویسے ہی فجر لوگ کم پڑھتے ہیں، پھر کنونشن میں تو اور کم پڑھیں گے جب ویکیشن پہ ہوں، ویکیشن پہ تو مذہب بھی ویکیشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نماز پڑھا دیجیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتے ہیں۔ 27 لوگوں نے نماز پڑھی، جس میں سے 17 لوگ شورٹس میں تھے۔ جی ہاں۔ تو ایک بچے نے آگے مجھ سے پوچھا کہ حضور ہماری نماز ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی کہتے ہیں تو پھر سپاہی کو چاہیے اپنی وردی میں پڑھے۔ یہ میں پیغام دوں گا اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، کہ آپ اگر امام زمانہ کی فوج کے سپاہی ہیں تو آپ کے تن پہ لباس وہ ہونا چاہیے جو امام زمانہ کو ناپسند نہ ہو۔ لہذا یہ شورٹس وورٹس ہمارے لیے نہیں ہے، ورنہ لے کر تو میرے لیے بھی آئے ہیں میرے شاگرد۔ میں نے ایک بندہ کنورٹ کیا، شیخ رحیم، بعد میں میرا شاگرد بن گیا، تو وہ باقاعدہ افریقن افرو امریکن جو آپ کہتے ہیں، افرو امریکن، تو وہ میرے لیے شورٹس لے کر آئے۔ جی ہاں۔ تو میں نے کہا بھائی ہم نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ ہم امام العصر کی آرمی کا لباس پہنے ہوئے۔ آرمی والا اگر لباس کم بھی کرے گا تو چلیے ٹوپی اتار دے گا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ شورٹس پہن لے گا۔ لہذا یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، اس پیغام کو عام کیجیے۔ میرے اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اس لیے صحیح ہونا چاہیے، گانے وانے ہمارے گھروں میں نہیں لگنے چاہیے، اس لیے کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں اجل علی ظہورک۔ اگر مولا آ جائیں اور میرے گھر میں آ جائیں تو میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غلام نہ جا سکے، تو پھر امام کیسے آئیں گے؟ جیسے مجھے کئی لوگ لے جاتے ہیں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی مہلت مانگتے ہیں، پتہ چلا مہلت یہ ہے کہ وہ گانے وانے چھپانے ہیں۔ ہاں، وہ کچھ مورتیاں رکھ رکھی ہیں، کچھ تصویریں لگا رکھی ہیں، تو وہ ساری ماڈلز کی تصویریں اتار رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر غلام کو آپ برداشت نہیں کر رہے اپنے گھر میں تو امام کی کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام عام ہونا چاہیے۔ آخری بات سنیں آج کی، کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ 12 والی جو گردان ہے وہ کل کریں گے، کیونکہ آج ذرا دیر ہو گئی تھی، تو کل گردان ہے انشاءاللہ 12 کی۔ قرآن میں سے 17 کل ثابت کرنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ریفرنسز کے ساتھ۔ تو آج یہ بات سن لیجئے، امام زمانہ کے ایک سپاہی کا کریکٹر آج سن لیں، تاکہ ہم اس لیول پہ آنے کی کوشش کریں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ
इल्ला मा सा। इंसान को वही मिलेगा जिसकी कोशिश करे। वो है शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह। शेख मुफीद न ये इमाम के रिश्तेदार हैं, न ये सैयद हैं, औलाद रसूल हैं, आम इंसान हैं। इन्होंने अपने आप को इतना इवेलुएट किया है कि जब इनकी डेथ हुई तो जमाने के इमाम ने अपने दस्ते मुबारक की उंगुश्त शहादत से 3 शेर इनकी कब्र पे लिखे। कोई समझना, इस लेवल पे आने की कोशिश करनी है। जमाने के इमाम ने वो अशार मैंने अपनी आंखों से कब्र शेख मुफीद पे पढ़े। इमाम जमाना के हाथ के लिखे हुए अशार आज भी काज़मैन शरीफैन में बाबुल हवाइज के सदर दरवाजे पर दफन है शेख मुफीद। वहां पर जो सैयद रजी और सैयद मुर्तजा के उस्ताद हैं, कहां एवेलुएट किया, कहां पहुंचाया इंसान ने अपने कैरेक्टर के जरिए कि जिसे बीबी फातिमा ख्वाब में आकर कहें कि रजी और मुर्तजा के बारे में मेरे इन 2 बेटों को तालीम दो। किस जगह पहुंचा है वो शख्स? जरा लेवल बुलंद करना पड़ेगा। अगर इमाम जमाना की मारिफत लेवल बुलंद करना होगा। इमाम लिखते हैं ला सव्वतन नाई बिफक़दिका अन्नहु यौमुन अला आलिर रसूल अज़ीमु व इन कुंता कद गुय्यबता फी जदस सरा फल अदलु व तौहीद फीका मुकीमु वल काइमुल महदी यफरहु कुल्लमा तोलियत अलैका मिनद दुरूस उलू। फरमाते हैं ए मुफीद, तुम्हारी डेथ की न्यूज, मौत की खबर हम तक न पहुंचती। हमारे अहले बैत के घर में तुम्हारी डेथ के बाद सफ़े मातम बिछ गई। मकाम देखिए कहां पहुंचाता है इमाम जमाना के सिपाही अपने आप। हमारे घर वाले रो रहे हैं तुम्हारी डेथ की वजह से, और ए मुफीद, तुम्हारा जमाने का इमाम इस बात की गवाही देता है कि तुम्हारा बदन तो मिट्टी तले दब सकता है मगर तुम्हारा मिशन कभी मिट्टी तले नहीं छुप सकता। और फरमा रहे इस मेयार पे पहुंचाया है शेख मुफीद ने। और फिर फरमाते हैं तुझे क्या खबर मुफीद कि जब तू दर्स पढ़ता और पढ़ाता था तो तेरा जमाने का इमाम कितना खुश होता। ये आपने दर्स तदरीस, शरीयत फहमी, फिक्र फहमी, कुरान बीनी, कुरान फहमी, हदीस फहमी, इस्लाम फहमी को आपने कोर्स के तौर पे लेना होगा ताकि हुज्जत इब्नुल हसन का दिल खुश हो। मैं कहूंगा मौला आपने फरमाया कि आपके अहले बैत एक गुलाम की मौत पे रो रहे हैं, मगर आप तो सारे इमामों की शहादतों पे रो रहे हैं। आपकी मुसीबतें तो इतनी तवील हैं, इतने मसाइब हैं आपके। एक जुमला जरा आज सुन लीजिए। फरमाते हैं अस्सलामु अला अम्माती, मेरा उन बुजुर्ग बीबियों पे सलाम कि जो खैमों से निकली थी काशिफातिर रुऊस लातिमातिन नाइमातिन, जब खैमों से निकली थी तो उनके सर खुले थे, चादरें छिन गई थी, वो नोहे पड़ रही थी, वो बैन कर रही थी, वो आहो बुका कर रही थी और मातम करती हुई खैमों से निकली थी। दूसरा बैन जमाने के इमाम करते हैं, फरमाते हैं मेरा सलाम उन मेरी रिश्तेदार बुजुर्ग बीवियों पे जिनके हाथ पसे गर्दन बांधे गए। जज़ाकल्लाह। एक रिवायत के मुताबिक आज शहादत है सकीना बिनतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा की। तो मैं चंद जुमले आज उसी बीबी के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इमाम ज़माना भी कहते हैं मेरा उस बच्ची पे सलाम जिसने शिमर के तमाचे का है, मेरा उस बच्ची पे सलाम जो जिंदान शाम में मर गई। याद रखना जिनकी छोटी छोटी औलादें ग्रैंड डॉटर्स हैं वो समझेंगे। 3.5 साल का सिन्न मुबारक है इस बीबी का करबला में,
3.5 साल टोटल सिन्न मुबारक। और इस बीवी ने बड़े दुख उठाए हैं, बड़े रंज उठाए। मैंने परसों एक जुमला न्यूयॉर्क में कहा था अल-महदी सेंटर में, और मैं तकरीबन उसके बाद मसाइब पढ़ ही नहीं सका, इतना गिरिया हो गया। एक जुमला जरा वही अपनी तकरीर से मुस्तार लेके जुमला अर्ज कर रहा हूं। मैंने कहा था मेरे भाई बहनों, मसाइब अली की बेटियों के भी बहुत थे, मसाइब हुसैन की बेटियों के भी बहुत थे, मगर फ़र्क ये था अगर अली की बेटियों के मसाइब ज़्यादा थे, उनकी उम्रें भी ज़्यादा थी। हुसैन की बेटियों की उम्रें कम थी, मसाइब ज़्यादा थे। और सबसे ज़्यादा मसाइब इस बच्ची के थे कि जो अपने बाबा के सीने पे सोने की आदी थी। हुसैन इब्न अली ने वक्त आखिर कहा था कि बच्ची मुझे जाने दो, शायद मैं पानी ला सकूं, लअल्ली आती के बिल माँ। बच्ची ने अपनी छोटी छोटी बाहें बाबा के गले में डाल दी। बाबा मैं न जाने दूंगी, इसलिए कि चचा अब्बास भी तो यही कह के गए थे, जो ये कह के जाता है वो वापस नहीं आता। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं देख रहा था, हुसैन ने कोई बात बच्ची से कही, बच्ची जो कह रही थी ना कि बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, वो कहती है सिधारो बाबा, खुदा हाफिज बाबा। मैंने करीब जाके पूछा इमाम हुसैन से कि आपने क्या कहा बच्ची को, कि बच्ची जो आपको जाने नहीं दे रही थी। बच्ची ने रोका ही नहीं। इमाम ने कहा, मैंने बच्ची से कहा बेटी मैंने नमाज तहज्जुद में दुआ मांगी थी, बारे इलाहा मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरे बगैर न रह सके और मैं जिसके बगैर न रह सकूं, और जब तू इम्तिहान गाह में पुकारे मैं उस बच्ची को रोता हुआ छोड़कर तेरी बारगाह में पहुंच जाऊं। बच्ची ने कहा सिधारो बाबा, मगर बच्ची ने एक जुमला कहा। बच्ची कहती है बाबा मैं आपके सीने पे सोती हूं, अगर आप ना आए तो मैं कहां सोऊंगी। इमाम फरमाते हैं बेटी आज तुम अपनी माँ के सीने पे सो जाना। बच्ची कहती है वहां तो असगर सोते हैं, कहा आज तबादला कर लेना, असगर हमारे पास सो जाएंगे, तुम माँ के पास सो जाना। बच्ची रोती रह गई, बाबा चले गए। मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है कि जब खंजर चल रहा था, खंजर लग रहा था, तो बच्ची सब्र न कर सकी, दौड़ती हुई करीब आई और कहती है शिमर हया कर, ये नबी ज़ादा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम अला ज़हरा, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। बच्ची जब आई थी ना, बाबा की लाश पे आई थी मेरे अजीजों, जब हाथ बंधे हुए थे, रावी ने लिखा कि बच्ची अपने बाबा की लाश से जाते हुए लिपट के रो रही थी कि शिमर आया। शिमर ने एक ताज़ियाना मारा, एक ताज़ियाना मारा, बच्ची लिपट गई लाश पिदर से और ये कह के हट गई बाबा अब मैं कयामत में मिलूंगी। एक जुमला और सुन लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था मदीना में कि मौला हमने सुना है जो गोशवारे शिमर ने आपकी बहन के छीने, वो गोशवारे टेढ़े नहीं हुए। आपने फरमाया पूछने वाले तूने मेरा दिल जख्मी कर दिया, वो गोशवारे तो सालिम रहे मगर मेरी बहन के कान छिद गए, मेरी बहन के कान छिद गए। एक मर्तबा बच्ची उठी और बच्ची ने अपने बाबा के कातिल से कहा शिमर सारी बीवियों को ले जा, मुझे कूफा और शाम न ले जा। कहा क्यों, क्या मेरी 3 हसरतें हैं शिमर, मेरी 3 हसरतें हैं। मेरी पहली हसरत ये है मेरा बाबा प्यासा मारा गया है, जब तुम चले जाओगे मेरे हाथ खुल जाएंगे, फरात के किनारे पे जाऊंगी, एक चुल्लू पानी का भरूंगी, बाबा के प्यासे गले पे डाल के कहूंगी बाबा इससे पहले मेरा बस नहीं चला। ये सुल्तान दो जहां के नवासा का लाशा है, बेगोरो कफन पड़ा है, जब तुम चले जाओगे मैं दरख्तों के पत्ते चुन के लाऊंगी, गरीब ज़हरा का कफन बनाऊंगी, और जब तुम चले जाओगे
कोई काफिला गुजरेगा, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी काफिले वालों, एक अल्लाह रासी मर गया, एक मुसाफिर मर गया, एक परदेसी मर गया। इस तरह मेरे बाबा का लाशा दफन हो जाएगा। बच्ची ऊंट से गिर गई, बच्ची को तमाचे लगे, बच्ची के गोशवारे छिने, बच्ची के कुर्ते में आग लगी, बच्ची को ताजियाने लगे। अल्लामा हुसैन बख्श ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ख्वाब में देखा था, इमाम से कहा था कि मैं जितने मसाइब आपकी बहन के पढ़ रहा हूँ, आप राजी है ना? हक़ सकीना अदा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, हुसैन बख्श जितने मसाइब आज तक पढ़े गए, मेरी बहन को लगने वाले एक तमाचे की कीमत नहीं बने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकुम अला ज़हरा। आज शहादत है ना बीबी की, आज हुसैन की यतीमा की शहादत है। और अरब का दस्तूर है, अगर आप किसी के यहाँ ताज़ियत करने जाएं ना, किसी की बच्ची या बच्चे की, तो मरने वाले का बाप मर्दों का शुक्रिया अदा करता है, मरने वाले की माँ औरतों का शुक्रिया अदा करती है। मेरा ईमान है आज हुसैनिया के मर्दों के दरवाजे पे मेरे मौला हुसैन आएंगे, औरतों के दरवाजे पे जनाब रबाब आएंगी। हमारी यतीमा को रोने वालों, हम कयामत में तुम्हें न रोने देंगे। बस मेरे अजीजों, दो जुमले और सुन ले, तवील जहमत नहीं दे रहा, काफी गिरिया हो चुका है माशाअल्लाह। दो के दो जुमले और सुन लीजिए। बीबी को जब सर मिला था ना बाबा का, मालूम है ना, बीबी को बाबा का सर मिला, अपने खुश्क होंठों को बाबा के खुश्क होंठों पे रखा और बीबी ने बयान शुरू की। बीबी कहती है, मन कता वरीदक या अबता, बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? मन खलबा लहयतक बेदमक या अबता, बाबा तेरी बेटी पूछती है, ये तेरी सफेद दाढ़ी को तेरे खून का खिजाब किसने लगाया है? मन है तमनी फी सिगर सिन्नी, बाबा ये बचपन में मुझे यतीम किसने किया? बाबा एक बयान बड़ा अजीब है जिसका तर्जमा फारसी मुअर्रिख ने किया है, ऐ पिदर मेहरबानम शिकस्त शुदे उस्तखानम, ऐ मेरे मेहरबान बाबा मेरी हड्डियां टूट गई, मेरी पसलियां टूट गई। और फिर बच्ची कहती है, बाबा दुख्तरान शामी बरकालीन सरमी गुजारन व दुख्तर तो बेदीवार जिंदान सरमी गुजारत, बाबा शामियों की लड़कियां मखमली तकियों पे सर रखती है, तेरी बेटी का तकिया कभी जिंदान की दीवारें है, कभी जिंदान की जमीन है, कभी नोकीले पत्थर है। बाबा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। ऑनलाइन भी जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अल्लाह उनकी हाजतें भी पूरी करे, अल्लाह आपकी हाजतें भी पूरी करे, अल्लाह हमारे आलिम साहब को भी मुकम्मल तौर पे शिफायात फरमाए और अल्लाह हमारे हादी भाई जाफरी के दर्जात को भी बुलंद फरमाए, उनके सगायर और कबायर से दरगुजर फरमाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आज की मजलिस के बानियान, हुसैनिया के बानियान, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। आज मैंने सिर्फ बच्ची का मसाइब पढ़ा है, इसलिए कि 13 सफ़र को इस बच्ची की शहादत है। बस एक का एक जुमला और सुन लीजिए और मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। जब बच्ची मर गई ना मेरे अजीज़ों, जब बच्ची मर गई, अब सबील करनी थी कफन की, अब सबील करनी थी गुस्ल की, मगर सैयद सज्जाद को इतना पानी न मिला कि अपनी बहन को गुस्ल दे सकते। और जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, उन्होंने कोशिश की मगर कुर्ता पुश से न हटा, शिमर के ताजियानों की वजह से कुर्ता चिपक गया था, लहू लुहान हो गया था। उसी कुर्ते में सादात ने बच्ची को दफना दिया। मातमे हुसैन।
حسین یا حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں آئے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پیرا ہو یا کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں آئے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پیرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے اے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ زندانوں سے آتی تھی آواز
सिसकने की जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की जैसे कि सकीना को है जैसे कि सकीना को हर जिंदान रो रहा हो या कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो जिंदान में ऐ नजफी याद आई सकीना की जिंदान में ऐ नजफी याद आई सकीना की दिल रो रो कह रहा है हाय दिल रो रो कह रहा है अब न उजाला हो या रब मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन अस्सलामु अलैका या सय्यदत निसा अल-आलमीन अस्सलामु अलैकुमा या सिब्तय रहमत व इमामय अल-हुदा अल-हसन वल-हुसैन सय्यद शबाब आल-जन्नह अस्सलामु अलैकुम या सादती व मवालिय या अली इब्न अल-हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजा व साहिल लना मख़रजा वक़हुल नाज़िरना बिनज़रतिन मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहिदीन बैन यदैहि अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।